np. So whenever we want to call numpy, we will call np. Okay. It will convert, means whenever you want to convert your data into arrays form, we'll use this. Then second important library is matplotlib, and in this matplotlib, pyplot is, means I already told you, in all of these libraries there are many classes as well as functions. So only pyplot is the function that is the class that we will use. It is also called as merger, means we can say library is merger of many packages, classes and functions. So we can say that pyplot is one of the merger, and that will be used in this program. So not only, means we are not calling हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते थे. सो टू यूज वन ऑफ द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट वी डू, स्ट्रक्चर नेम डॉट दैट फील्ड नेम, है ना, यही होता था ना. स्ट्रक्चर सबको, किसी को याद है व्हाट इज स्ट्रक्चर इन सी? यस मैम, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है इसमें हम स्ट्रक्चर और यूनियन, व्हाट इज ओनली, बस ऐसे ही हम जानना चाह रहे हैं आपकी प्रोग्रामिंग स्किल देखने के लिए. मैम स्ट्रक्चर भी है ना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और यूनियन भी है ना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितना हम डेटा लेते हैं उसके सब उसमें ये रहता है. यूनियन में अगर हम इंट और कैरेक्टर दो लेते हैं तो इंट का यूज कर सकते हैं, या यूनियन का कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं. बट स्ट्रक्चर में जितना हम डेटा टाइप लेते हैं इंट के और सब, तो वो एक साथ सब इंक्लूड होता है. ओके. हाँ, काफी हद तक सही है. सो वी कैन से इन यूनियन मेमोरी विल बी, मीन्स जितना हम डिफाइन करेंगे दैट मच मेमोरी विल बी यूज्ड ओनली. और स्ट्रक्चर में आपने जितना स्ट्रक्चर में जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, यू नीड टू हैव मेमोरी फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल. ओके. सो स्ट्रक्चर या यूनियन में हाउ वी एक्सेस वन फील्ड, पूरा आपका ये अगर स्ट्रक्चर नेम है, and suppose the student is a structure name, and in that student structure we have different fields. One field is name, another field is id, another field is address, and so on. So how we will suppose we have to access only name, so how we access that field is to, means structure name dot field name, है ना. इसी तरीके से देखिए यहाँ भी होता है in object oriented, whenever we need to call only one class or function from the library, so we will first write that library name, that particular merger. Okay. So again pyplot, why this merger of matplotlib library we are using here, because we want we know in machine learning models finally we want to show the result in terms of many graphs and charts. So we want those, so that's why we are importing this library. And again pyplot we are writing in short as plt. So import matplotlib.pyplot as plt. Okay. Then import pandas as pd. So we'll see that in Python we means pandas library is helping us to create data frames. Data frames are nothing but, you can say that matrix in which you are having in rows and columns, and different values are written in this matrix. So that is called as the data frame. And pandas help, means pandas is for that creating that data frame. So these are the three main important libraries that we generally means import in our machine learning code, and particularly data pre-processing code. मैम पांडास और नमपाई में क्या डिफरेंस है, कब किसका यूज करेंगे? पांडास और नमपाई में किसका यूज करेंगे, कब किसका यूज करेंगे, क्या डिफरेंसेस है मैम? देखिए ये
बहुत बहुत ज्यादा आप लोग डिटेल में थोड़ा सा अपना खुद से देखिएगा, हम आपको यहाँ पे बहुत पूरा तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये आपको एरेज का कंसेप्ट आपने सी में पढ़ा होगा, ठीक है। और ये डेटा फ्रेम है आपका, डेटा फ्रेम जनरली हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम अपने फीचर्स को लेते हैं, उन फीचर्स को जनरली हम लोग pandas के थ्रू डेटा फ्रेम उसका क्रिएट करते हैं, ठीक है। और numpy हम कब यूज करेंगे, जब हमारा कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि हमारा किसी दूसरे फॉर्म में है एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एरेज, तब हम numpy का यूज करेंगे। तो अदरवाइज जनरली हम pandas का यूज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे इसका ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास CSV फाइल में डेटा है और उसको हमें रीड करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो या जिसको हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। सो अगर हम खाली फीचर्स की बात करें तो सपोज एज, सैलरी and address and so on, these are the features. So all those values we need to this is stored in some CSV and we want to read it in memory, and that आपने C में भी पढ़ा होगा, we name those as a variable। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसका टाइप यू कैन से एज ए डेटा फ्रेम, ठीक है। वो pandas में डेटा फ्रेम है, ठीक। ओके मैम। हाँ, और so these are the main libraries that we need in case of data pre-processing, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे कि हो सकता है कि when we implement some particular machine learning model we need some other libraries also, लेकिन अभी हम data pre-processing हम लोगों ने पढ़ा था, उसी का आज implementation देखेंगे। तो उसके लिए mainly ये 3 libraries हैं। After importing libraries we have to import the data set, मतलब हमारा डेटा सेट जहां भी स्टोर है, we have to import that data set in our program so that we can apply pre-processing steps on that data set, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, ये pandas में there is one function read underscore CSV, ठीक है। so you see pd dot read underscore CSV, this function of pandas we are calling and we have to give as an argument to this function, हमें क्या देना होगा, the actual file name जिसमें हमारा data set store है। so I will show you। मैम, हाँ मैम फाइल नेम देना होता है या पाथ देना होता है फाइल का? पाथ के साथ, हाँ पाथ ही पूरा देना होता है आपको, बट if means I will upload this on Google Classroom, so I will means otherwise it will not take। अगर हम यहाँ पे रन करेंगे और हमने यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, since path is not given, तो वो नहीं लेगा। लेकिन I will upload means I am talking in terms of Google Colab कि आप Colab में अपना प्रोग्राम कैसे रन करेंगे। so I will show you how to first of all upload or take this file in this environment so that it can access it directly। तो हमें यहाँ पे पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम data.csv लिख देंगे, ठीक है, फाइल नेम लिख देंगे। देन व्हाट वी हैव टू डू, पूरा डेटा सेट एक साथ generally means when we will when we will apply machine learning models on the data set, होता क्या है कि हमारा पूरा डेटा सेट पे एक साथ मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई नहीं होता है। मशीन लर्निंग मॉडल में जो हमें इनपुट देना होता है, वी हैव टू गिव 2 सेपरेट इनपुट्स, वन इज फीचर्स मींस योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड सेकंड इनपुट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल और द वेरिएबल दैट यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट। तो इसीलिए वी विल क्रिएट 2 वेरिएबल्स, हम 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एक में हमारा फीचर्स सारी वैल्यूज आ जाएंगी और एक में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो डेटा इसके लिए क्या होता है, पूरा जो हमारा डेटा सेट था वी हैव रेड इन द डेटा फ्रेम दैट इज जिसका नाम हमने दिया डेटा सेट, ओके। देन डेटा सेट जो हमने इससे मींस डेटा सेट बेसिकली एक आपका ऑब्जेक्ट, यू कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, उस ऑब्जेक्ट का हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्योंकि डेटा सेट में आपका पूरा डेटा सेट है, ये data.csv में जो भी वैल्यूज पड़ी हैं। लेट मी शो यू व्हाट इज दिस डेटा सेट, उसको हम कैसे इसमें हम करते हैं। We will upload, अच्छा ऑलरेडी डेटा आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट, ठीक है। वो हम आपको बाद में एक बार फिर से दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपनी डेटा फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अभी ये ऑलरेडी यहाँ है, सो आई विल शो यू
what is in this data file or what is our data set. This is the data set. ठीक है, country names, age, salary. So age and salary is there. It means it is a data set of different persons, जो कि किसी हो सकता है किसी कंपनी के क्लाइंट हो या कहीं कस्टमर्स हो किसी सुपरमार्केट के, and also on and then after age and salary, purchased, so whether they have purchased some product or not. ठीक है, so this is the information that is stored in this data set. तो हम हो सकता है कि it is of some you can say किसी जिस भी कंपनी का ये डेटा है, that company wants to analyze their clients कि किस क्लाइंट ने किस प्रोडक्ट को या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कि कौन से क्लाइंट्स ने परचेज किया था, किस तरीके के क्लाइंट्स ने परचेज किया था और किस तरीके के क्लाइंट्स ने परचेज नहीं किया था. दैट टाइप ऑफ एनालिसिस दे वांट टू डू. इस डेटा सेट को देख के ये समझ में आ रहा है. ठीक है, सपोज दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा सेट. तो हमें इस डेटा सेट को पहले हमने रीड किया. सो इन दिस डेटा सेट यू गॉट ऑल दीज एंट्रीज. ठीक है, ये सारी आपकी वैल्यूज इसमें आ गई. नाउ व्हाट वी वांट, अभी हमने आपको बताया कि जब मशीन लर्निंग मॉडल में वी डोंट वांट मींस जो मशीन लर्निंग मॉडल में इनपुट हम देते हैं, वी डोंट गिव द होल डेटा सेट एज इट इज. हमें उसको फीचर्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और द वेरिएबल दैट यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट उसमें तोड़ना रहता है. ठीक है, वी हैव टू टेक टू डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर दैट. तो देखिए कैसे हम करेंगे. सो यूजिंग इंडिसेस एंड मींस वी गिव what are the indices location of feature values or independent variables, as well as feature what is the indices location of dependent variable. उनको यूज करके हम लोग करते हैं. so that's why ये फंक्शन का नाम भी कुछ इसी तरीके से iloc means indices location. so we are giving indices location of input independent variables. तो देखिए हम लोग इसमें किस तरीके, क्या इसका फॉर्मेट है. इसका फॉर्मेट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो द रेंज ऑफ ऑल द रोज एंड सिमिलरली वी गिव द रेंज ऑफ ऑल द कॉलम्स. ठीक है, तो हमको देखिए जब हम डेटा सेट में इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे इसमें कौन कौन से हैं, कंट्री, एज एंड सैलरी. डिपेंडेंट वेरिएबल इज परचेज. ओके, एंड अगर हम कहें कि ऑब्जर्वेशंस या हमारे इंस्टेंसेस कौन से हैं, सो इंस्टेंसेस तो ये सारे हैं. ठीक है, तो रोज जब हम कह रहे हैं कि हमें अपने फीचर्स निकालने हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है, so it means we will talk only about these first three columns, country, age and salary. लेकिन रोज सारी आएंगी, है ना, सारी रोज है ना, सारी रोज, क्योंकि all of these rows are representing different observations in the data set. तो सारी रोज, लेकिन कॉलम्स हमें खाली ये 3 लेने हैं. ठीक है, it will give you x, it will give you set of independent variables. ठीक है, जिसको हम फीचर वेक्टर कहेंगे. तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं. फर्स्ट आर्गुमेंट इज फॉर रो, सेकंड इज फॉर कॉलम. और रो को हम रो की रेंज बताते हैं. अगर मान लीजिए हमें खाली 4 रोज चाहिए होती तो हम यहाँ पे उसकी रेंज बताते हैं. कोलन से पहले जो होता है दैट इज द फर्स्ट इंडेक्स मींस स्टार्टिंग इंडेक्स, और जो बाद वाला है वो लास्ट इंडेक्स है. ठीक है, तो क्योंकि हमें जब सारी रोज चाहिए होती हैं तो हम कोलन लगा देते हैं, कोई भी इसके आगे पीछे नहीं लिखते हैं. इन पाइथन इट्स मीन ऑल रोज. ठीक है, कॉलम में देखिए, कॉलम व्हाट वी वांट अप टू सैलरी. ठीक, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कोलन से पहले कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज वी नीड ऑल कॉलम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड अप बिफोर द लास्ट वन. ठीक है, लास्ट वन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जनरली दिस इज द फॉर्मेट व्हेन वी स्टोर एनी डेटा सेट. हम लास्ट कॉलम में अपने उस डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं जिसे हमें प्रिडिक्ट करना है, एंड इन द प्रीवियस कॉलम्स वी स्टोर ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम इसी तरीके से स्टोर करते हैं और ऐसे ही जनरली स्टोर करते हैं. एंड इन पाइथन जो लास्ट कॉलम होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, -1. ठीक है, लास्ट कॉलम को हमेशा -1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वन मोर थिंग कि यहाँ जो रेंज अगर हम लिखें, अगर हमें पूरी रेंज लिखनी होती तो हम क्या लिखते हैं, ये इस पाइथन में जो फर्स्ट कॉलम होता है इट्स इंडेक्स इज 0. ठीक है, तो हम
जीरो से मतलब ऐसे लिख सकते थे, 0 और फिर कहाँ तक हमें लेना है, 0 1 2 है ना, 0 वाला इंडेक्स लेना है, 1 वाला लेना है, 2 वाला लेना है। तो अगर हम यहाँ 0 और 2 लिख देते तो भी सही होता, लेकिन एक प्रॉब्लम होती, मतलब इसमें क्या है, द लास्ट इंडेक्स जो भी हम यहाँ लास्ट लिखते हैं दैट इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब फर्स्ट वाला तो इंक्लूड होगा, 0 हमने लिखा तो 0 वाला इंक्लूड होगा, और वहां से सारे आते आते जो भी लास्ट लिखा है वो वाला इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर हम या तो यहाँ पे 3 लिखें तो फिर 0 वाला, और यहाँ 0 लिखें, यहाँ 3 लिखें, तो कौन कौन से इंक्लूड होंगे, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड वाला नहीं होगा। ठीक, तो या तो हम ऐसे लिखें, और एक दूसरा तरीका है कि हम -1 लिखें। -1 का मतलब ये लास्ट वाला ये वाला नहीं लेगा, इसके पहले वाले तक। और -1 किसको रिप्रेजेंट करता है पाइथन में, लास्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सो एनी टू ऑफ दीज फॉर्मेट्स यू कैन यूज, आइदर यू कैन राइट हियर 0 to 3 or you can write here, means don't write anything in the first argument, or is after colon you write -1. So -1 means the last column is dependent variable, उसको हमको लेना नहीं है, ठीक है। तो उसको छोड़ के उसके पहले वाले जितने कॉलम्स है, so it will take country, age and salary. Is it clear? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। एंड देन डॉट वैल्यूज, ठीक है, डॉट वैल्यूज, सो ऑल दीज वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन एक्स। ठीक, इसी तरीके से अब हमें वाई में क्या लेना है, वाई में ये वाला कॉलम लेना है, तो सेम वैसे ही हम करेंगे, डेटा सेट डॉट आईलॉग एंड देन ऑल द रोज। ठीक है, वाई की हमें सारी रोज स्टोर करनी है, and which particular column, so I already told you -1 represents the last column, and we store our dependent variable in the last column, so simply we will write here -1, the last column की जो भी values हैं that will be stored in y. Clear? मैम हम लोग इसमें कॉलम क्यों यूज नहीं किए -1 के पहले? इसलिए नहीं यूज किए क्योंकि हमें रेंज नहीं देनी है ना, हमें खाली एक ही कॉलम, हमारा y जो है वो तो प्रिडिक्टेड द वेरिएबल दैट वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट है ना, वो वाला है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड नहीं होते ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये तो एक ही कॉलम है ना। तो जब एक ही कॉलम हम उसका इंडेक्स दे देंगे, तो इस कॉलम का इंडेक्स क्या होता है, लास्ट कॉलम का इंडेक्स होता है -1, तो इसलिए -1 ठीक है। नाउ you can means check what is in now x and y variables, so हम simply print x करेंगे, so you will see all these values are here। ठीक है, ये सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी। you see there are some missing values in age and salary, तो मिसिंग वैल्यूज को ये NaN से दे रहा है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर एज इट इज। ठीक, वो प्रिंट हो गई। इसी तरीके से y when you will print, ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट हो गई। क्लियर? ठीक है, so what we have done till now, we have imported all the libraries, and then using libraries definitely many of the other mergers of these libraries we will use further, लेकिन to import our data set हमने कुछ पांडास लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस, कुछ उनको यूज किया फंक्शंस को। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पूरा एक डेटा सेट रीड किया, फिर उसको 2 पार्ट में स्टोर किया, so that हमारा independent variables values we stored in one variable और dependent variable value we stored in another one। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया और उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। नाउ वी हैव सीन कि अगर मिसिंग वैल्यूज हैं जिसको हमने मैनुअली, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा सेट है और मैनुअली हम नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा जगह पे मिसिंग वैल्यूज हैं या जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, सो हाउ वी कैन डू इट, हाउ वी कैन प्रोग्राम इट फॉर, वी नो दैट मिसिंग वैल्यूज वी आर हैविंग ओनली इन एज एंड सैलरी। ठीक है, सबसे पहले तो वी शुड नो कि किस वेरिएबल्स में, किस फीचर्स में मिसिंग वैल्यूज हैं। देन there's this important library scikit-learn, and many machine learning models you will see is in this library scikit-learn। So in scikit-learn, this is the most important data science library। हम लोग जब implement करेंगे आप देखेंगे कि बहुत बार हम इस लाइब्रेरी को यूज करेंगे। एंड आफ्टर दिस क्लास और आफ्टर 2-3 क्लासेस आई विल टेल यू कि आप scikit-learn को जाके देखिए, या जो भी उसके हम लोग क्लासेस यहाँ इंपोर्ट करते हैं एटलीस्ट,
जो भी ये क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके जो भी मर्जर्स यूज कर रहे हैं उनको जाके उसमें पढ़िए कि उसमें और क्या क्या होता है, ठीक है। हम लोग तो उसके कुछ चीजों को ही देखेंगे, लेकिन वहाँ डिटेल में आपको मिलेगा। सो वो बात की बात है, हम बाद में बताएंगे आपको कि कैसे देखेंगे, कैसे आप लर्न करेंगे scikit-learn लाइब्रेरी के डिफरेंट मर्जर्स और उसको क्लासेस एक्सेट्रा फंक्शंस। तो यहाँ हमें क्या करना है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ मिसिंग वैल्यूज। सो फॉर मिसिंग वैल्यूज देयर इज ए क्लास सिंपल इम्प्यूटर, ठीक है। दिस क्लास इज इन इम्प्यूट मर्जर ऑफ scikit-learn लाइब्रेरी। तो हमें क्या करना होगा, फ्रॉम scikit-learn डॉट इम्प्यूट इम्पोर्ट सिंपल इम्प्यूटर, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये क्लासेस लर्न हो जाएंगे, ठीक है। जब बार बार हम लोग अभी बहुत सारे मॉडल्स देखेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल्स, और उनकी जब कोडिंग देखा करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। या मतलब देखा क्या करेंगे, अब भी आज हम डिटेल में बता रहे हैं, बाद में हम कोडिंग का आपको सिंपली कोड दिखाया करेंगे, रन करके दिखाएंगे, नथिंग एल्स। हर बार इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन यू विल इम्प्लीमेंट, ठीक है। हर क्लास के बाद हर मॉडल यू विल इम्प्लीमेंट ऑन सम स्मॉल डेटा सेट, तो आपको लर्न हो जाएगा। So from scikit-learn library of means impute merger of scikit-learn, उसमें से हमने सिंपल इम्प्यूटर क्लास लिया, और ये सिंपल इम्प्यूटर क्लास में हमें दो आर्गुमेंट्स देने रहते हैं। कौन से दो आर्गुमेंट्स देने रहते हैं, एक तो ये कि मिसिंग वैल्यूज इज इक्वल टू numpy डॉट नैन। नैन मतलब वी आर सेइंग दैट कि जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, जहाँ पे नैन इज रिप्रेजेंटिंग यू मिसिंग वैल्यू, ठीक है, जहाँ भी मिसिंग वैल्यूज हैं, एंड उस फिर देन वी हैव टू टेल strategy इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। इट कैन योर strategy में भी मीन, मीडियन और मोड, डिपेंडिंग ऑन कि हम किससे करना चाह रहे हैं। सपोज हम चाह रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ मिसिंग है वी विल रिप्लेस दैट मिसिंग वैल्यू बाय मीन ऑफ द रेस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ दैट फीचर, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे मीन लिखा, अदरवाइज हो सकता है मीडियन लिखें। अगर हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, इन दैट केस मीन मीडियन ना यूज करके हम क्या करते, यहाँ पे मोड यूज करते। जो सपोज फ्रांस कई बार यूज हुआ है तो हम फ्रांस डाल देते हैं उसमें, है ना। इस तरीके से वी कैन यूज मींस इन दिस वे वी आर टेकिंग केयर ऑफ मिसिंग डेटा। तो इम्प्यूट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपल इम्प्यूटर, ठीक है। सिंपल इम्प्यूटर एक क्लास है जो कि इम्प्यूट मर्जर में डिफाइंड है, ठीक है। आपने उसको इंपोर्ट किया, वो मर्जर किसका है, scikit-learn का है। सो दैट्स व्हाई हमने कैसे कॉल किया, इस क्लास को कैसे कॉल किया, कैसे इंपोर्ट कराया, scikit-learn डॉट इम्प्यूट। इस मर्जर में से हमने इस सिंपल इम्प्यूटर क्लास को इंपोर्ट कराया। देन वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। यहाँ पाइथन में कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सिंपली वी विल राइट सम वेरिएबल नेम। हमने इम्प्यूटर एक वेरिएबल नेम लिखा इज इक्वल टू सिंपल इम्प्यूटर, दिस इज द क्लास नेम, और उस क्लास में जो भी वेरिएबल्स हमें आर्गुमेंट्स हमें सेंड करने हैं वी विल राइट दैट। और इससे होगा क्या, सिंपल इम्प्यूटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और वो इम्प्यूटर में आ जाएगा, ठीक। तो और उसमें मिसिंग वैल्यूज उसको पता चल, मतलब इसमें जो हमने आर्गुमेंट दिए हैं, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उस ऑब्जेक्ट में दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल दिखा रहा है कि जो भी मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, उसकी वैल्यू है मतलब नैन मतलब नल, और strategy एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है मीन, ठीक। नाउ व्हाट इज द दिस मींस इन दिस इम्प्यूटर ऑब्जेक्ट, ये जो सिंपल इम्प्यूटर क्लास था इसके अंदर एक फंक्शन है फिट, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन है फिट, सो वी वांट टू कॉल दैट फंक्शन। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट ऑब्जेक्ट डॉट फिट, ठीक है। तो ये फिट फंक्शन क्या करता है, इट विल यू कैन से इट विल रिलेट योर एक्स में आपके फीचर वैल्यूज हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज हैं। सो इट विल रिलेट एक्स विद इम्प्यूटर क्लास, ठीक है। फिट का सिंपली ये काम होता है कि ये और ये मीन वगैरह निकालेगा, ठीक है, ये मीन इसका निकाल देगा, ठीक है। और मतलब इसने इसको अभी तो आपके इम्प्यूटर में तो खाली ये था, हमने ये डाला कि जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं जहां जहां भी और उन्हें हमें मीन से रिप्लेस करना है। सपोज हमने तो बस इम्प्यूटर में ये इन्फॉर्मेशन डाली इम्प्यूटर ऑब्जेक्ट में। अब ये इम्प्यूटर ऑब्जेक्ट में एक्स की वैल्यूज का मीन निकल के आ जाए, उसके लिए क्या होता है, फिट फंक्शन होता है इम्प्यूटर डॉट फिट, एंड एज एन आर्गुमेंट वी आर सेंडिंग एक्स, ठीक है। और एक्स में तो हमारे ये सारे हैं,
लेकिन हम किन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देंगे जिसमें मिसिंग वैल्यूज हैं, खाली उन्हें देंगे। ठीक है, तो रोज तो सारी होंगी, दैट्स वाई कोलन। ठीक है, फर्स्ट वाले आर्गुमेंट में कोलन है और रेंज कुछ नहीं दिए, इट मींस ऑल द रोज। देन कॉमा, कॉलम के लिए देखिए जीरोथ कॉलम इज दिस वन, ये तो हमारा इसमें मिसिंग वैल्यूज है नहीं और इसमें मीन वीन हम वैसे भी नहीं ले सकते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको नहीं लेना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट इंडेक्स इज 1, देन कोलन अप टू व्हेन। अगर हम 2 लिख देंगे तो ये हमने अभी आपको बताया कि 2 का मतलब है ये सेकंड वाले कॉलम को नहीं लेगा। सो सैलरी सेकंड इज सेकंड, तो हमें क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। ठीक है, या तो हम 3 लिखें या फिर हम -1 लिखें। -1 लिखेंगे तो ये -1 वाले लास्ट वाले को नहीं लेगा, उससे पहले वाले तक लेगा, या हम 3 लिखें तो ये थर्ड वाले कॉलम को नहीं लेगा, थर्ड कॉलम इज दिस कॉलम। ठीक है, उससे पहले वाले तक लेगा। तो इसमें अब हमारा एज और सैलरी कॉलम आ गया, उसका मीन कैलकुलेट हो गया। ठीक, देन there is a transform function that will replace your all missing values with this mean। ठीक, तो उस ये भी imputer क्लास का ही फंक्शन है। सो imputer डॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक, और इसमें हम फिर इसमें हमने वही आपका सेम आर्गुमेंट दिया। ठीक है, जिसमें ये वाले सारी वैल्यूज हैं। एंड देन इसने क्या किया, इसने वहां पे जहां मिसिंग था वहां पे उनका इसका मीन यहाँ डाल दिया, इसका मीन यहाँ डाल दिया, एंड देन वी नीड टू अपडेट x। ठीक है, सो दैट्स व्हाई x सेम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये जो अपडेट हुआ x, वो हमने मींस ये जो हमारा इसमें x में चेंजेस किए, दैट वी आर स्टोरिंग अगेन इन x, क्योंकि हमारे x में तो ये स्टोर है, मतलब x के फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में ये स्टोर है, तो हमने उनको अपडेट कर दिया। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? What happened? Yes, ma'am. यस मैम, क्लियर है। Okay, good. And then you can print it। हम जब इसे प्रिंट करेंगे, you see जहां जहां पे नैन था, यहाँ पे नैन था और यहाँ पे नैन था। ठीक है, मतलब नैन का मतलब नल वैल्यू, मिसिंग वैल्यू, वहां कोई भी वैल्यू नहीं थी। सो नाउ अब वो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, इन सबकी मीन आ गई, ऐसे ही इन सबकी मीन यहाँ आ गई। ठीक है, तो मीन वैल्यू आ गई। तो आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ मिसिंग वैल्यूज, हमको यहाँ दिख रहा है कि वी हैव वन ऑफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल लगाना चाह रहे हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास दैट वी नीड टू एनकोड कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, जो कैटेगोरिकल डेटा है, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है ना, कैरेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और हमें मशीन लर्निंग मॉडल जनरली मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, सो वी हैव टू डू सम मींस वी अप्लाई सम फंक्शंस, वी यूज सम फंक्शंस, और उसमें ये वैल्यूज फंक्शन में हमें डालनी होंगी। तो हम स्ट्रिंग को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे भी देखिए, ये भी हमारी यस नो मींस इस फॉर्म में लिखा है, इट इज अगेन नॉट नंबर, तो इट अगेन मींस बोथ ऑफ दीज वी नीड टू एनकोड इन सम वे इनटू न्यूमेरिक फॉर्म। और उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि एनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा, हाउ वी डू इट, क्या उसका नाम था, किस तरीके से हम लोग एनकोड करते थे, विच एनकोडिंग वी यूज, एनी वन ऑफ यू? जब हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है तो हम लोग उसको न्यूमेरिक में कैसे चेंज करते थे, लास्ट क्लास में हमने बताया था। वन हॉट एनकोडिंग, किसी को याद है वन हॉट एनकोडिंग? Yes, ma'am. 1 and 0 फॉर्म में। यस यस यस, 1 एंड किसने बताया? 0 फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देंगे। यस, बहुत जल्दी से हम लोग एक बार देख लेते हैं उसको, बहुत जल्दी से, है ना। देखिए, यहाँ हम लोगों ने देखा था कि सपोज आपकी ये वैल्यूज न्यूमेरिक हैं सारी, ठीक है, और ये लास्ट डिग्री इज एमएससी एंड एमटेक, सो दिस इज नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो हमें इसको चेंज करना होगा न्यूमेरिक वैल्यू में, सो दैट वी कैन अप्लाई मशीन लर्निंग मॉडल। तो उसके लिए हम वन हॉट एनकोडिंग यूज करते हैं। वन हॉट एनकोडिंग क्या करता है, इट विल रिप्लेस दिस कॉलम बाय 2 more columns। वाई 2 columns? क्योंकि इसमें 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। अगर इसमें 3 वैल्यूज होती, ठीक है, एमएससी एमटेक एंड बीटेक, 3 वैल्यू होती तो 3 कॉलम्स क्रिएट होते, बीएससी एमएससी एमटेक बीटेक तो 4 कॉलम्स ऐड होते। तो जितनी भी वैल्यूज इसमें हैं
कैटेगोरिकल वेरिएबल में जितनी भी वैल्यूज हैं, दैट नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी एडेड। और क्या होगा, इनमें 0101 वैल्यूज आएंगी। किस तरीके से आएंगी? इन द एमएससी मींस कॉलम करस्पॉन्डिंग टू एमएससी, उनमें वहां 1 होगा जिसमें जिन इंस्टेंसेस में एमएससी लिखा हुआ था। ठीक है, एमटेक में वहां 1 होगा जिन इंस्टेंसेस में एमटेक था। ठीक, सो इन दिस वे द सेम इंफॉर्मेशन वी स्टोर्ड इन दिस वे एंड दिस इज कॉल्ड एज वन हॉट एनकोडिंग। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, लेट अस सी दैट। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके दिए गए हैं, दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। फर्स्ट वे इज व्हेन वी आर हैविंग मोर देन 2 वैल्यूज। ठीक है, हमारे कोड, हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल में वी हैव मोर देन 2 वैल्यूज। यहाँ पे देखिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, एटलीस्ट 3 नेम्स वी आर हैविंग। ठीक है, इसमें 3 ही हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते थे, 4 होते तो 4 कॉलम्स आपके बन के आते, 5 होते 5 कॉलम्स बन के आते। यहाँ 3 है तो 3 कॉलम्स बन के आएंगे और ये कॉलम हट जाएगा एक्स में से। ठीक है, तो देखिए क्या है उसका कोड। अगेन इन द scikit-learn library there is merger compose and in this merger we have one class column transformer. ठीक है, so we have to import this column transformer from this merger of scikit-learn library and then in this scikit-learn library there is one more merger pre-processing and in this pre-processing we are having one hot encoder class. तो यहाँ पे to convert categorical variable into numeric values using one hot encoding we need 2 classes. एक कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास की जरूरत होती है और एक वन हॉट एनकोडर क्लास की जरूरत होती है। दिस क्लास इज इन प्री प्रोसेसिंग मर्जर ऑफ scikit-learn एंड दिस क्लास इज इन कंपोज मर्जर ऑफ scikit-learn। ठीक है, तो ये हमने दोनों क्लासेस यहाँ इंपोर्ट कर लिए। देन कॉलम ट्रांसफॉर्मर जो आपका क्लास है, ठीक है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक, और उस जब हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया देन देयर इज वन मींस बेसिकली there is one argument that we have to pass. That argument is this transformer is equal to, we have to give this, we have to give these 3 means basically you can say 2 arguments are there. ठीक है, फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू समथिंग एंड सेकंड इज रिमाइंडर इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो ये 2 इसमें आर्गुमेंट हमें पास करने होते हैं। ट्रांसफॉर्मर में हमें 3 वैल्यूज पास करनी है। फर्स्ट इज कि व्हाट वी आर, किस तरीके का ट्रांसफॉर्म हमें करना है। ठीक है, अपने एक्स पे हमें किस तरीके का ट्रांसफॉर्म करना है। सो वी वांट टू एनकोड एनकोडिंग करना है, सो दैट्स व्हाई उसके लिए हम यहाँ पे एनकोडर राइट करेंगे। ठीक है, फिर कौन सी एनकोडिंग करनी है, वन हॉट एनकोडर करना है, तो हम यहाँ पे वन हॉट एनकोडर क्लास लिख देंगे। ठीक है, उसका नेम लिखेंगे और जब भी हम क्लास नेम अगर एज एन आर्गुमेंट देते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट होता है, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं इसी तरीके से यहाँ पे क्लास नेम के बाद लिखेंगे। एंड देन ऑन विच पर्टिकुलर कॉलम, किस कॉलम पे वन हॉट एनकोडिंग लगाना है, तो 0th कॉलम पे लगाना है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे हमने इंडेक्स लिख दिया 0। सो ट्रांसफॉर्मर्स इज इक्वल टू, ये लिखना होगा हमको। ठीक है, ये 3 आर्गुमेंट प्रोवाइड करने होंगे। एंड देन रिमाइंडर इज इक्वल टू, हमको क्या बताना है कि हम मतलब ऐसा ना हो कि ट्रांसफॉर्म करके एक्स में अगर हम ये रिमाइंडर इज इक्वल टू पास थ्रू नहीं लिखेंगे देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बी कन्वर्टेड, दिस कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय 3 कॉलम्स। ठीक है, 3 कॉलम से रिप्लेस होगा और एक्स में खाली वही 3 कॉलम रह जाएंगे। सो व्हाट वी वांट कि जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं एक्स में, एज एंड सैलरी है, वो भी रहे। तो हम उसके लिए लिखते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू पास थ्रू। ठीक, और उसके बाद क्या हमने किया, उसके बाद हमको यहाँ पे देखिए numpy एरे यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना होगा, इसी का फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन, जो फिट ऊपर देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फिट और ट्रांसफॉर्म किया था ना, फिट से हमारा मीन निकला था और फिर ट्रांसफॉर्म करके हमने मतलब उस मीन से मतलब जहां जहां वो मीन था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ठीक है, ऐसे अलग अलग यहाँ पे 2 फंक्शंस थे। ठीक है, सिंपल इंप्यूटर क्लास के 2 अलग अलग फंक्शन थे, फिट और ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे क्या है, ये जो कॉलम ट्रांसफॉर्म है इसका फंक्शन है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये एक साथ कर देता है। ये क्या करेगा, मतलब ये फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या करेगा
कि इस 3 कॉलम बना देगा, ठीक है। उसमें उसके करस्पॉन्डिंग 1 0 0 होगा। फ्रांस के करस्पॉन्डिंग अगर फर्स्ट कॉलम है तो इसमें देखिए 1 आया है। स्पेन के करस्पॉन्डिंग वाला सेकंड नहीं थर्ड कॉलम है तो इसमें 1 आया है। जर्मनी के करस्पॉन्डिंग वाला बीच वाला कॉलम है तो इसमें 1 आया है। तो देखिए फोर्थ कॉलम में स्पेन है तो फोर्थ कॉलम में ये थर्ड वाले कॉलम में 1 है, ठीक है। ये दोनों 0 है, मीन्स इट इज नॉट फ्रांस जर्मनी, it is in this instance we stored स्पेन, ठीक है। इसीलिए तो ये एक एक कंट्री के करस्पॉन्डिंग कॉलम्स बन गए और जिन इंस्टेंस में जो कंट्री है उसके करस्पॉन्डिंग वाले कॉलम में 1 हो गया, ठीक। तो इसने क्या किया, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ने ये पूरा करके एक्स में कन्वर्ट किया और ये जो वैल्यूज हैं ये इसको अगेन हमको एरे में कन्वर्ट करना होता है तो numpy डॉट एरे, ठीक है। numpy डॉट एरे ने इस जो ये मतलब ये एरे बनाया इसने, है ना, क्योंकि ये तो खाली ये तो कुछ था ही नहीं हमारे पास तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐसे थे। इसने इसके करस्पॉन्डिंग ये वाले सारे कन्वर्ट किए, उसको एरेज में कन्वर्ट किया और उसको फिर एक्स में स्टोर कर दिया। तो एक्स में ये वाला वैल्यूज स्टोर हो गई प्लस रिमेनिंग वाली तो रही ही जो हमने पास थ्रो किया था, ठीक है। रिमाइंडर इज इक्वल टू पास थ्रो, ठीक है। देखिए क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो सकता है बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, फंक्शन का क्लास ऑब्जेक्ट फंक्शंस, यहाँ फंक्शन ना बोल के मेंबर बोलते हैं कि क्लासेस में 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं। मेंबर एक तो फंक्शंस होते हैं जिन्हें मेथड बोलते हैं और एक वेरिएबल्स होते हैं, है ना, जिन्हें एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बस क्लियर हो, फिर हम जैसे क्लासेस में क्योंकि बहुत सारे मेथड्स डिफाइन है तो हम उन्हें कॉल कर रहे हैं। जैसे हमारे कॉलम ट्रांसफॉर्मर का ये जो क्लास है इसमें एक मेथड डिफाइंड है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, तो हम उसे कॉल कर रहे हैं। कैसे कॉल करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम लिख देते हैं, ठीक है। उसमें आर्गुमेंट डालेंगे। तो फंक्शन तो सी के टर्म में आपने सी पढ़ा है तो हम बार बार फंक्शन बोल रहे हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो वी आर कॉलिंग फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड दैट इज डिफाइंड इन कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास। और ये क्लास कहाँ पे डिफाइन है, कंपोज मर्जर में। ये मर्जर कहाँ पे है, scikit-learn लाइब्रेरी में। तो इस तरीके की पूरी हायरार्की होती है, ठीक है। तो अब जब हम x को प्रिंट करेंगे तो देखिए इन प्लेस ऑफ दिस कंट्री कॉलम, हाँ मैम लाइब्रेरी में मैम कौन कौन सा क्लास डिफाइन है ये कैसे मालूम होगा मैम? ये हम आपको बाद में बताएंगे कि आप scikit-learn लाइब्रेरी में जाइए, उसमें अलग अलग मर्जर देखिए। जैसे आपको कंपोज मर्जर देखना है तो उसमें वो दिखा देगा कि कंपोज मर्जर में कौन कौन से क्लासेस हैं, हर क्लास का क्या रोल है। तो एक आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास दिखेगा, तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है, तो उसमें दिखाएगा कि इसमें एक फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक मेथड है, ये क्या करता है, और भी बहुत सारे मेथड होंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे काम जिस फंक्शन को, जिस मेथड को कॉल करने से चल रहा है हम उसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप scikit-learn लाइब्रेरी को खूब एक्सप्लोर कीजिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी ऑफ डेटा साइंस, ठीक है। तो आपको अभी तो शुरुआत हुई है आपकी मशीन लर्निंग, अगर आपने शुरुआत अभी की है तो दिस इज जस्ट द फर्स्ट क्लास ऑफ कोडिंग। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे ना, तो जो क्लासेस हम यूज कर रहे हैं आप वो वहां जा के देखिएगा। scikit-learn में ये मर्जर देखिएगा, प्री प्रोसेसिंग मर्जर में क्या क्या है। एक उसमें वन हॉट एनकोडर क्लास है, तो डेफिनेटली ये तो वन हॉट एनकोडिंग से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए, इसका अगर बहुत डिटेल में देखना है तो देखिए इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं एंड सो ऑन, ठीक। हर एक मेथड में कौन कौन से वेरिएबल्स मतलब आर्गुमेंट्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, ठीक। वो आपको देखना होगा। वही चीजें तो वही तो मेन इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको अच्छा करना है अपना, तो आपको scikit-learn लाइब्रेरी या पाइथन के ये सारे मतलब मेन scikit-learn लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से समझना होगा। और उसको जितना देखेंगे, जितना कोडिंग करेंगे, आपको सारे लर्न होता जाएगा कि अच्छा इसमें प्री प्रोसेसिंग के अंदर ये वन हॉट एनकोडर है। जब भी हमें अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल की एनकोडिंग करनी है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा हमें ये वाला मर्जर का ये ऑब्जेक्ट, ये क्लास कॉल करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन इट रिप्लेसेस कंट्री कॉलम विथ 3 कॉलम्स, ठीक है। और वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इसमें वैल्यूज हैं। सो इन ईच एंड एवरी इंस्टेंस
जो आपके 3 कॉलम आए, तीनों में से किसी एक में ही 1 होगा, अगर या तो पहले में या दूसरे में या तीसरे में। पहला हो सकता है, जैसे यहाँ पे पहला फ्रांस के करस्पॉन्डिंग है, दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरे में स्पेन लिखा है, तो यहाँ देख लीजिए कि कहाँ पे 1 आया है, यानी थर्ड कॉलम इज करस्पॉन्डिंग टू स्पेन। तो जहां जहां स्पेन होगा उसमें थर्ड कॉलम में 1 होगा, ठीक है। जहां जहां फ्रांस लिखा होगा जिन इंस्टेंसेस में, उनमें फर्स्ट कॉलम में। तो हमें पता है, अच्छा इस वाले इंस्टेंस में फ्रांस लिखा होगा, इसमें भी फ्रांस लिखा होगा, एंड सो ऑन, ठीक। सेकंड वाला जर्मनी के करस्पॉन्डिंग है। एंड रेस्ट ऑफ दीज टू एज एंड सैलरी इज देयर, ठीक। तो ये तो इन जनरल अगर आपके मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं, मोर देन 2, यहाँ पे मोर देन 2 वैल्यूज हैं कैटेगोरिकल में, तो हम लोग ऐसे करते हैं। इफ मीन्स यहाँ हम क्या डिपेंडेंट वेरिएबल को भी एनकोड करना होगा, बिकॉज यहाँ भी हमारे यस नो टाइप वैल्यूज हैं, वो नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। हम वी वांट 0 1 टाइप वैल्यूज इन अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम लोग यहाँ पे हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेबल एनकोडर। जब खाली यस नो वैल्यू हो, खाली 2 ही वैल्यू हो, बाइनरी वैल्यूज हो, तो हम उस केस में साइकिट लर्न का प्री प्रोसेसिंग ही देखिए मर्जर है। प्री प्रोसेसिंग में 1 हॉट एनकोडर भी क्लास है और इसमें एक लेबल एनकोडर भी क्लास है। लेबल एनकोडर कब यूज करते हैं, व्हेन दे आर ओनली 2 वैल्यूज, ठीक है, इट इज कैटेगोरिकल वेरिएबल बट इट कंटेन्स ओनली 2 वैल्यूज, तो उस समय ये 0 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और तो कैसे करना है, वेरी सेम, वी हैव टू इंपोर्ट लेबल एनकोडर क्लास ऑफ प्री प्रोसेसिंग मर्जर ऑफ scikit-learn, but then we will create one of the object of this। so le सपोज हमने एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर उसका फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल किया। कुछ हमको और बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली y में हमारा ये स्टोर है ना, y वेक्टर में ये स्टोर है, तो उसने y और फिर y को हमने यहाँ से अपडेट कर दिया, तो y में अब नो के करस्पॉन्डिंग 0 1 के करस्पॉन्डिंग यस आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को भी एनकोड कर दिया। आफ्टर दैट अब हमारे पास खाली दो काम और बचे हैं प्री प्रोसेसिंग में। हमने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लिया, हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल को हैंडल कर लिया, है ना। हमने और क्या क्या किया, सबसे पहले तो पूरे डेटा सेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फीचर वेक्टर को अलग और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग कर दिया, एक्स और वाई में अलग अलग किया, ठीक है। अपने डेटा सेट को इंक्लूड कराया था, यहाँ इंपोर्ट कराया था, तभी ये रन करेगा, तभी ये सारी वैल्यूज लेगा, उस पर ये सब ऑपरेशन परफॉर्म होंगे एक्स और वाई पे, ठीक है। और हमने क्या क्या किया, मिसिंग वैल्यू वाला काम किया, हाँ मिसिंग वैल्यू किया, कैटेगोरिकल डेटा का कर लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लेबल एनकोडर को यूज करके कर लिया। नाउ अब खाली दो चीजें और हैं। एक है बिफोर अप्लाइंग मशीन लर्निंग मॉडल we need to split our data set into training set and test set. This is one of the tasks that is remain, and one is feature scaling, ठीक है। This is the it is also required for some of the machine learning models। हम लोगों ने देखा था लास्ट राउंड पे कि फीचर स्केलिंग हर मशीन लर्निंग मॉडल में से पहले लगाने की जरूरत नहीं है, बट दे आर फ्यू मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट जिसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि इफ वी हैव डिफरेंट कॉलम्स, किसी कॉलम में छोटी वैल्यूज हैं, किसी कॉलम में बड़ी वैल्यूज हैं, देन अगर आपने एज इट इज लर्न करा दिया, so that machine learning model will emphasis on or the means large values, it may ignore small values। तो ऐसा हो सकता है कि ये एज एट्रीब्यूट को कंसीडर ही ना करे, ये खाली सैलरी को लेके कर दे, क्योंकि सैलरी में बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज हैं एज से। सो व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं कि हमारा मॉडल हर एक वेरिएबल को इक्वली ट्रीट करे एंड बेस्ड ऑन दैट वो ट्रेन हो। सो व्हाट वी वांट कि हम दोनों इसमें जो वैल्यूज हैं वो क्लोज हो जाएं, मींस सेम स्केल में आ जाएं। अगर इसकी वैल्यू 0 to 100 है तो ये भी 0 to 100 हो जाए, ठीक है। या इसको भी हम 0 to मतलब 0 to 1 कर दें, इन सब वैल्यूज को, इनको भी 0 to 1 कर दें, ठीक, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्डाइजेशन एज वेल एज नॉर्मलाइजेशन, दे आर 2 टेक्निक्स, और जनरली हम इनमें से यूज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कब हम यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन विल कन्वर्ट योर वेरिएबल वैल्यूज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। अगर हम इस पे नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे तो ये 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक अगर हम लगाएंगे तो ये जनरली -3 to +3 के बीच में वैल्यूज कर देता है, ठीक है।
और जनरली हम कौन सी लगाते हैं फॉर फीचर स्केलिंग? वी कैन यूज एनी ऑफ दीज टू, ठीक है, चाहे हम नॉर्मलाइजेशन करें चाहे स्टैंडर्डाइजेशन करें। पहले ये बताइए क्लियर हो रहा है जो हम बोल रहे हैं, सब क्लियर हो रहा है ना? यस मैम। ठीक। तो अब हम कब हम मींस वेदर वी शुड यूज नॉर्मलाइजेशन टेक्निक और स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक, इसको यहाँ हम लोगों ने देखा था ना पिछली बार। इस फीचर स्केलिंग हम या तो स्टैंडर्डाइजेशन से करें या नॉर्मलाइजेशन से करें। नॉर्मलाइजेशन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो x माइनस एक्स मिन, तो x इज दिस वैल्यू माइनस जो भी इसमें मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, अपॉन जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू। तो जब हम इससे इन सारे x को, एक बार x ये है, अगली बार x ये है, ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले से, फिर चेंज कर लिया, फिर इस दूसरे वाले को भी, तो हम सबको जब चेंज कर देंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो ये सारी वैल्यूज किस में आ जाएंगी? 0-1 के बीच में आ जाएंगी। तो इसको हम कहेंगे कि हमने फीचर स्केलिंग की यूजिंग नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। सेम हम स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। हम क्या करें, हमने इसका मीन निकाल लिया, ठीक है, और फिर हमने इस वैल्यू को कैसे रिप्लेस किया? दिस वैल्यू माइनस इट्स मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आपका अंडर रूट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, आपने इसका वेरिएशन निकाला, उसका अंडर रूट लिया। सो इस फॉर्मूले से हमने इन सब सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। तो ये जनरली -3 से +3 के बीच में सारी वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज फीचर स्केलिंग। ऐसे ही हम इसे भी कर दें, तो ये भी या तो हम स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ भी यूज करें, यहाँ भी यूज करें, या नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी यूज करें, यहाँ भी यूज करें, ठीक। तो इससे हमारे we will say that कि each all the features will be in the same scale, सारे -3 to +3 के बीच में वैल्यूज हैं, या सबकी 0 to 1 के बीच में वैल्यूज हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए? जनरली स्टैंडर्डाइजेशन यूज करें कि नॉर्मलाइजेशन यूज करें? तो इट हैज बीन सीन दैट कि अगर आपके ये जो वेरिएबल्स हैं सॉरी, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो फीचर्स हैं, अगर ये फीचर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मतलब मोस्ट ऑफ द फीचर्स, ऐसा जो ही नहीं है कि सारे फीचर्स, लेकिन इसमें तो 2 ही फीचर हैं। मान लीजिए ऐसे 10 फीचर हैं आपके पास जो जिनमें हमें लग रहा है कि किसी की वैल्यू बहुत छोटी है, किसी में वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, किसी में और बड़ी हैं, ऐसे करके, तो हम उन 10 पे लगाना चाह रहे हैं। तो वो अगर मोस्ट ऑफ दीज 10 वेरिएबल्स आर फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या करेंगे, तो हम नॉर्मलाइजेशन ये वाला लगाएंगे, नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, तब हमको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। और इट हैज बीन सीन दैट कि स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी केस में, चाहे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें चाहे ना करें, दोनों ही केस में बेटर रिजल्ट देता है, ठीक है। तो जनरली मीन्स ये देखा गया है कि स्टैंडर्डाइजेशन ही यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई कंडीशन ले ही नहीं रहा है, ये हमेशा जनरली मतलब हर केस में ये आपको बेटर रिजल्ट दे देगा, ठीक। जब आप मॉडल ट्रेन करेंगे तो बेटर एक्यूरेसी मिलेगी अगर आपने स्टैंडर्डाइजेशन लगाया। नॉर्मलाइजेशन कब बेटर रिजल्ट देता है, इससे भी अच्छा रिजल्ट कब देगा, जब अगर सारे या बहुत सारे वेरिएबल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। क्लियर? तो वैसे हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बट मोस्टली हम स्टैंडर्डाइजेशन फीचर स्केलिंग टेक्निक लगाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. यस So मैम। let us understand how we will implement it. कि अगर हमने माना कि ठीक है हम स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक से फीचर स्केलिंग करेंगे, ठीक, तो फीचर स्केलिंग करेंगे तो अगेन अब हमारे पास अब ये डेटा सेट नहीं रह गया। अब हमारे पास डेटा सेट क्या है, मीन्स डेटा सेट का मतलब एक्स में क्या है, एक्स में ये पड़ा हुआ है। फर्स्ट 3 कॉलम्स में ये 0101 वैल्यूज है, उसके बाद एज है और देन सैलरी है, ठीक है। तो हम फीचर स्केलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हमें ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया 01 में, क्या इस पे भी फीचर स्केलिंग लगाना चाहिए? तो द आंसर इज नो, इन पे हम फीचर स्केलिंग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0-1 के बीच में है। सो इफ वी आर अप्लाइंग फीचर स्केलिंग ऑन दीज यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये जनरली -3 से +3 के बीच में आएगा। तो ठीक है, 0-1 में है इन कॉलम्स में वैल्यूज, और इसमें -3 से +3 के बीच में वैल्यूज आ गई, तो बहुत डिफरेंस नहीं है।
इसी तरीके से अगर हमने नॉर्मलाइजेशन टेक्निक लगाई तो ये वाले 0 to 1 में आ जाएंगी वैल्यूज, ये भी 0 to 1 में आ जाएंगी, और ये 0 to 1 में है ही, और 0 या 1 ही वैल्यूज हैं। सो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम लगा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा क्या कि अभी तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे 1 है, मीन्स इट इज स्पेन, इसमें स्पेन था, यहाँ 1 है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू जर्मनी। लेकिन तब क्या होगा, कहीं 0.5 आ जाएगा कहीं, तो फिर वो मतलब समझना मुश्किल होगा, फिर से हमें मतलब उसको मतलब हमें बैक प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, बैकवर्ड प्रोसेसिंग, कि हम फिर से 0-1 में कन्वर्ट करें, तो फालतू की चीज है, कोई जरूरत ही नहीं है। It is already 0-1, that is in the nearly same scale of -3 to +3 या 0 to 1, ठीक है। तो हम इन कॉलम्स में फीचर स्केलिंग नहीं करेंगे, खाली इनमें करेंगे, ठीक। अब देखते हैं कैसे करेंगे। सो स्टैंडर्ड स्केलर इज क्लास ऑफ प्री प्रोसेसिंग मर्जर ऑफ स्केलर्न। तो प्री प्रोसेसिंग मर्जर में देखिए हम लोग अभी तक तीसरा क्लास देख रहे हैं। एक क्लास हम लोगों ने देखा था वन हॉट एनकोडर, है ना, इसका एक क्लास था ना वन हॉट एनकोडर, ये देखिए प्री प्रोसेसिंग का वन हॉट एनकोडर एक क्लास था, एक लेबल एनकोडर क्लास था, और अब हम लोग तीसरा क्लास देख रहे हैं। इसका एक क्लास है, आ गया, अच्छा ये हमने छोड़ दिया, हम फीचर स्केलिंग पे डायरेक्ट बताने भी लगे ना उसका कोड। चलिए अच्छा ठीक है। एक चीज और, हम कोड बताने से पहले अभी हमने कहा ना कि दो चीजें बची हैं, एक तो है ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में स्प्लिट करना, दूसरा है फीचर स्केलिंग। नाउ एक चीज और है कि हमें होता क्या है, मींस वी शुड फर्स्ट स्प्लिट डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट, देन वी शुड डू फीचर स्केलिंग। मतलब फीचर स्केलिंग पहले नहीं करनी चाहिए, पहले ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद फीचर स्केलिंग करनी चाहिए। क्यों, उसका रीजन क्या है, देखिए रीजन ये है कि अगर हम पहले स्प्लिट ना करें तो क्या है, एक्स में वी आर हैविंग ऑल दीज, है ना, ऑल दीज इंस्टेंसेस, जिस पे हमने फीचर स्केलिंग लगा दिया। तो फीचर स्केलिंग कैसे लगेगा, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो इट विल कैलकुलेट मीन ऑफ ऑल दीज एजेस, ठीक है, सबका मीन निकलेगा, ठीक है, सबका मीन निकलेगा यहाँ से। और उसके बाद में क्या होगा, हमने फीचर स्केलिंग कर दी, सबका मीन, सबका स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर उस फॉर्मूले से हमने कन्वर्ट कर दी वैल्यूज। उसके बाद हमने सपोज ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में डिवाइड किया, तो फिर हमने डिवाइड कर दिया, सपोज 8 इंस्टेंसेस इसमें रखे, 2 इंस्टेंसेस टेस्ट सेट में रखे, तो क्या हुआ, टेस्ट सेट में जो वैल्यूज थी उनका भी यूज हुआ था मीन निकालने में। तो दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन लीकेज। मींस होना क्या चाहिए, व्हेन वी आर ट्रेनिंग आवर मॉडल ऑन सम ट्रेनिंग सेट, तो हमें टेस्ट सेट से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, खाली हमें ट्रेन सेट से मतलब है ना, ट्रेन सेट पे ही हम लर्न करवा रहे हैं, एंड देन वी विल इवेल्युएट अवर मॉडल ऑन द टेस्ट सेट। तो टेस्ट सेट तो बिल्कुल नया सेट होना चाहिए जिसका पहले हमने कोई यूज ही ना किया हो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब हमने इसको फीचर स्केलिंग की थी, इस पे और इस पे फीचर स्केलिंग लगाई, वी यूज्ड वैल्यूज ऑफ टेस्ट सेट आल्सो, ठीक है, टेस्ट सेट में जो इंस्टेंसेस थे उनकी वैल्यूज को भी यूज करके मीन लिया। तो समवेयर यू आर यूजिंग टेस्ट सेट बिफोर ट्रेनिंग, है ना, और यू कैन से बिफोर इवेल्युएशन ऑफ द मॉडल। तो इसीलिए करना क्या है, हम जब फीचर स्केलिंग हम किस पे करेंगे, हम खाली टेस्ट सेट ट्रेनिंग सेट पे करते हैं। मतलब ट्रेनिंग सेट का मीन आए, मतलब पहले हम ट्रेन सेट में डिवाइड कर दें, एक्स में सपोज आपके ट्रेनिंग सेट में 8 इंस्टेंस आए हैं, तो बस खाली हम उसका मीन लेते हैं, ठीक है, उसका मीन लेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, उसके थ्रू हम इसको 0-1 में कन्वर्ट कर देंगे, या -3 to +3 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो उसके बाद डेफिनेटली हम इसमें भी करेंगे, ठीक है, जब हम फिर, क्योंकि इसकी वैल्यूज हम +3 और -3 के बीच में हो गई, जब हम इवेल्युएट करेंगे, हमने फिर उससे अपने जो भी वैल्यूज आई उससे अपने मॉडल को लर्न करा लिया, फिर जब हम टेस्ट कराएंगे तो इन वैल्यूज पे थोड़ी ना कराएंगे, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन फीचर स्केलिंग हम इन पे भी लगाएंगे। लेकिन कौन सा मीन यहाँ यूज करेंगे, विल नॉट अगेन कंप्यूट द मीन फ्रॉम दीज वैल्यूज, हम जो इनका मीन आया था और जो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आया था उन्हीं को यूज करते हैं यहाँ पे। दैट्स वाई पहले स्प्लिट करना चाहिए, फिर हमको
फीचर स्केलिंग करनी चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है इतना? कुछ जो हमने बोला समझ में आया? यस मैम। मैम ये ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट क्लियर नहीं हुआ अच्छा, अभी। पहले आप देख लीजिए, शायद पहले इसी चीज को समझ लीजिए कि सपोज आपका अब ये आपका डेटा सेट हो गया है ना, ये डेटा सेट है, डेटा सेट तो नहीं है ये आपकी एक्स वैल्यूज हैं। एक्स वैल्यूज मीन्स फीचर वैल्यूज, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, तो ये एज है, एज वैल्यूज हैं, ये सैलरी है, और ये 3 कॉलम आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वेदर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ्रांस से वो पर्सन है, कि स्पेन से है, कि जर्मनी से है, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज हैं दैट आर स्टोर्ड इन एक्स। और इसी तरीके से वाई में क्या स्टोर है? परचेज्ड वैल्यूज हैं, जो कि 0-1 फॉर्म में स्टोर है। अब ये तो पूरा डेटा सेट है। हमने आपको जब शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था तो क्या बताया था कि हम मशीन लर्निंग मॉडल जब अप्लाई करेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस? जो हमारा पूरा डेटा सेट है, वी स्प्लिट दैट डेटा सेट इनटू ट्रेन सेट एंड टेस्ट सेट। ट्रेन सेट में जनरली 70-80% इंस्टेंसेस हम रखते हैं, एंड रिमेनिंग 30-20% इंस्टेंसेस हमारे टेस्ट सेट में रहेंगे। ठीक है, तो मतलब एक्स के ये जो शुरू के, अगर हम 80% ट्रेन सेट में रख रहे हैं, तो एक्स के अगर ये टोटल 10 वैल्यूज हैं, तो 8 इंस्टेंसेस हम ट्रेन सेट में रखेंगे और 2 इंस्टेंसेस हम टेस्ट सेट में रखेंगे। इसी तरीके से वाई की शुरू की, ये जो शुरू की नहीं कह सकते, रैंडम ही होता है वो, कोई 8 वैल्यूज जो हैं वो वाई ट्रेन में आ जाएंगी। मतलब वाई ट्रेन का मतलब है जिससे हम ट्रेन कराएंगे अपने मॉडल को, एंड वाई टेस्ट में कोई 2 वैल्यूज आएंगी इसकी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए शुरू की 8 वैल्यूज एक्स ट्रेन में गई, तो शुरू की ये वाली 8 वैल्यूज वाई ट्रेन में चली जाएंगी। बची हुई ये 2 एक्स टेस्ट में गई। ठीक है, ये वाली सारी एक्स टेस्ट में गई, ये 6 वैल्यूज, और ये वाली वाई टेस्ट में गई। ठीक, ऐसा होता है। तो हम इनसे, इन 8 वैल्यूज से अपने मॉडल को ट्रेन कराएंगे, और जब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया तब हम इन पे टेस्ट करेंगे। हमें पता है अच्छा इस इंस्टेंस के लिए वैल्यू आनी चाहिए नो, हमने देखा क्या आई, नो ही आई कि यस आई, फिर ऐसे ही इस पे टेस्ट कराया। तो मतलब हम टेस्ट सेट क्या होता है, इवेल्युएशन के लिए होता है कि अच्छा ठीक है हमने ट्रेन करा लिया इससे, अब टेस्ट करा रहे हैं तो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट सेट पे क्या रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? ये तो ट्रेन सेट और टेस्ट सेट होता है, इतना क्लियर है? हाँ ये सर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि फीचर स्केलिंग हमें पहले करनी चाहिए कि पहले टेस्ट सेट और ट्रेन सेट में डिवाइड करना चाहिए। तो आंसर हमने क्या बोला कि पहले वी शुड स्प्लिट आवर डेटा सेट इनटू ट्रेन सेट एंड टेस्ट सेट। मतलब पहले हम, अभी तो हमारा डेटा सेट जो था दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, एक्स में ये सारा डाल दिया था, वाई में ये डाल दिया था। अब हम कह रहे हैं कि एक्स को भी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट। ठीक है, एक्स ट्रेन में इतना आ जाएगा शुरू के 8 इंस्टेंसेस, और वाई ट्रेन में एक्स टेस्ट में बाद वाले इंस्टेंसेस आएंगे इतने 2। ठीक, इसी तरीके से वाई को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, वाई ट्रेन यहाँ तक और वाई टेस्ट। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि हम पहले एक्स, मतलब हमारे पास तो पूरा एक्स है, उस एक्स को पहले हम एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में डिवाइड करें कि पहले हम इस पे फीचर स्केलिंग लगाएं। तो आंसर क्या है कि पहले हमें डिवाइड कर देना चाहिए, बाद में फीचर स्केलिंग लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फीचर स्केलिंग में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हमने इस पूरे पे फीचर स्केलिंग लगाई, तो फीचर स्केलिंग करने के लिए क्या होगा, इस यहाँ भी वैल्यू अब तो आ चुकी है आपके पास में, तो इन सबका एवरेज लिया जाएगा, मीन लिया जाएगा। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर रहे हैं तो इनका मीन लिया जाएगा, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा, और इस फॉर्मूले से ये सारी वैल्यूज जो हैं बदल दी जाएंगी, रिप्लेस कर दी जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी किया जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ, ये जो टेस्ट सेट में वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो भी तो यूज हुई मीन निकालने में, जबकि टेस्ट सेट तो बिल्कुल नया अलग होना चाहिए, इवैल्यूएशन के समय वो बिल्कुल नया
टेस्ट नए इंस्टेंसेस उसमें होने चाहिए जिन्हें हमने पहले कभी यूज ही ना किया हो, जब ट्रेन कराया ट्रेनिंग के समय उनका यूज ना हुआ हो, लेकिन फीचर स्केलिंग में हमने यूज कर लिया। अगर हम बिना स्प्लिट किए सब सारे को यूज करके हमने फीचर स्केलिंग कर दी, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन लीकेज। तो हमें अपने टेस्ट सेट की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी है, वो टेस्ट सेट हमारे लिए बिल्कुल नए इंस्टेंसेस की तरह हम यूज करेंगे, इसीलिए पहले हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, पहले हम ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में डिवाइड करेंगे, ठीक, क्लियर है, क्लियर, यस मैम। ओके। तो देखिए कैसे हम ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में डिवाइड करते हैं। सो मॉडल सिलेक्शन इज वन ऑफ द मर्जर ऑफ scikit-learn। उसमें ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, दिस इज द क्लास दैट वी विल यूज, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इस क्लास को हमने इंपोर्ट किया और उसके बाद हमने 4 वेरिएबल बनाए, xtrain, xtest, ytrain, ytest, ठीक है, हमें 4 ही तो चाहिए। xtrain में हमें ये 8 यहाँ तक की ये सारा वैल्यूज चाहिए, xtest में ये वाली 6 वैल्यूज चाहिए, ठीक है, ये ऐसे ही ytrain में ये यहाँ तक की 8 वैल्यूज चाहिए और ytest में ये दोनों वैल्यूज चाहिए, ठीक। तो हमने xtrain, xtest, ytrain, ytest 4 वेरिएबल लिए, इज इक्वल टू ये वाला क्लास, ठीक है, train अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, और इसमें हमने x और y जो हमारे पास अभी है वो डाला, क्योंकि अभी तो x में सारे हैं, अभी तो x में ये पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पड़ा है। इसमें ध्यान रखिए कि ये अब बदल चुका है, इसकी जगह 3 नए कॉलम है, ठीक। तो x में आपके पास 5 कॉलम है, ये है, ठीक है, ये सारा है, और y में आपके पास ये सारा है 0-1 फॉर्म में, ये सारा, ठीक। हमें इनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, xtrain, xtest, ytrain, ytest, ठीक। और हम उसे बता रहे हैं कि हमारा टेस्ट सेट का साइज क्या होगा। हमने अगर लिखा टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 0.2, तो 0.2 मीन्स 20% हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनके 20% टेस्ट सेट में आ जाएंगे और 80% आपके मतलब ट्रेन सेट में जाएंगे। मतलब 20% xtrain में जाएगा इसका, ठीक है, 20% ytrain में जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से टेस्ट सेट में 20% इसका चला जाएगा और ytest में इसका 20% चला जाएगा, और ये रैंडम होता है। मतलब अगर 10 इंस्टेंस है तो कोई 2 इंस्टेंस, इनमें से कोई 2 इंस्टेंस, जैसे सपोज सेकंड वाला और 8th वाला गया, ठीक है, टेस्ट सेट में, तो इसका भी 2nd और 8th वाला ट्रेन सेट में चला जाएगा और बाकी के xtest में चले जाएंगे, बाकी के इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो वो रैंडमली होता है, हम लोग नहीं पता। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हर बार वही जाए, जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाए, कुछ हम चेंज कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो बार बार अगर अलग अलग हो जाएगा कि पहली बार टेस्ट सेट में ये 2 इंस्टेंस चले गए, अगली बार टेस्ट सेट में ये 2 इंस्टेंस चले गए, तो कैसे, फिर तो हमारा रिजल्ट अलग आना ही है। तो हम क्या करते हैं, सीड वैल्यू डाल देते हैं, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू 1 डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो हर बार जो 2 इंस्टेंस डालेगा टेस्ट सेट में, वो बार बार वही 2 इंस्टेंस डालेगा। इसकी वैल्यू अगर हम चेंज कर देंगे, 0 कर देंगे, तो कोई 2 और इंस्टेंस जाने लगेंगे। इसकी वैल्यू चेंज करने से, तो अगर हम वैल्यू सेम रख रहे हैं, हर बार 1 ही रख रहे हैं, तो वही 2 इंस्टेंस हमेशा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों को फिर प्रिंट कराया, चारों को। xtrain में कोई 8 इनमें से आ गए होंगे, ठीक है, xtest में बचे हुए 8 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, ytrain में इनमें से कोई 8 आए और ytest में इनमें से कोई 2 आए। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, बस ये लास्ट बचा है, ठीक है, फीचर स्केलिंग लास्ट बचा है, कर लेना, जिससे कि कल से फिर नया क्लास, या फिर कल करें, बताइए, कल इसको हल्का सा रिवाइज करा के करें अगर आपके लिए थोड़ा हैवी हो रहा हो। Let me know, I don't have any problem. यस मैम, थोड़ा सा रिवाइज कर। यस मैम, थोड़ा सा रिवाइज कर। अच्छा ठीक है, तो हम ये कोड आपका आज अपलोड कर देंगे, आप लोग रिवाइज कर लीजिए कोड एंड दिस आल्सो, और आप उसको रन भी करा के देख लीजिएगा, गूगल को लैब पे ही रन करा लीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से रन कराते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है,
हो सकता है हमने कहीं पे जो ऐसे ऐसे किया, कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम। इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ऊपर का ही अभी रन नहीं कराया ना, तो इसलिए वो डिफाइंड नहीं है। हमको हर एक जो जो हमने कोड लिखे हैं सब हम 1 बाय 1 जब रन कराएंगे, तो आप रन करा के देख लीजिएगा, ऐसे वो रन होगा, सारा प्रिंट करके देगा जैसे जैसे चेंज हो रहा है। देन फीचर स्केलिंग, कल इस पूरे को रिवाइज कराते हुए फीचर स्केलिंग हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ वी इम्प्लीमेंट फीचर स्केलिंग। ठीक है, so give your attendance now. Just 1 second. Okay, so I'm stopping here, and if you have any doubt, please ask, otherwise you can leave.